अमेरिकी राजदूत ने खुद आकर बयान दिया है। किसी और नेटवर्क के पास ये बातचीत नहीं है, ये बड़ी खबर है। सर्जियो गोर जो कि अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने और शांति वार्ता में भारत की भूमिका अहम रह सकती है, ये कहा है सर्जियो गोर ने। अगले महीने मार्को रूबियो भारत आने वाले हैं और कई बड़े मुद्दों पर ट्रंप और मोदी के बीच बातचीत होगी। जरा आपको सुनवाते हैं क्या कहा है अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने। All right, well, joining us now, the U.S. Ambassador to New Delhi, Mr. Sergio Gore. Mr. Gore, thank you so much for speaking to us. It's a very, very important day today. Prime Minister Modi, President Trump have had an opportunity of speaking to each other. Could you tell us how that conversation went? Yes, they just got off the phone actually a few minutes ago. So I was late to our event because of that very important phone call. Look, the President keeps the Prime Minister updated regularly, and so without getting into too many private details, the President gave him an update on what is happening in the Middle East, along with some of the big ticket items that we have happening in Washington between the United States and India. I just got back from Washington, where I met virtually the entire cabinet, Commerce, Secretary, Treasury, USTR on trade, the Department of War, and of course the President. And so we have a lot of big ticket items, and so you might see some news over the next few days, but it's not for me to give you tonight. Do you see India having a possible role in the peace process? I think the whole world can have a role in the peace process, and that includes India, of course. The President welcomes everybody who wants to be involved in this. Yeah. And sir, that's important. The President welcomes anybody who wants to be a part of it. How do you see India potentially being a part of it? That would be a question for India, to be honest. But it's one of those things. Look, right now there's only one country that is holding the Strait of Hormuz hostage. And so, of course, we welcome all parties to encourage that to reopen. These are international waters. No country should be able to hold and blockade the whole world. And do you see President Trump coming to India soon? I will tell you this, that Secretary Rubio will be here next month. Yes. And so we're thrilled that he'll be coming first. Are you optimistic, sir, of the war in West Asia coming to a close soon? What are your views, given the fact that we're all impacted one way or the other? I think the United States was actively negotiating, and so we'll see what happens. But the sides continue to engage. And just a final question, just so that I understand you potentially see India having a role, in the peace process. Would that be correct for me to phrase? I think that's for India to decide. However, the United States would welcome their involvement as they have welcomed many other countries. Thank Ambassador you. Gore, thank you very much. So much. और हमारे सहयोगी आदित्य राजकौल इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। आदित्य, ये बातचीत कितनी अहम है, क्योंकि हम जानते हैं कि युद्ध का समय है और अभी इस्लामाबाद टॉक्स फेल हुई हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फोन उठाते हैं और भारतीय प्रधानमंत्री से बात करते हैं। जी, बहुत ही अहम बातचीत हुई है। लगभग एनडीटीवी पे ये एक्सक्लूसिवली सर्जियो गौर ने बताया है, कंफर्म किया है मेरे कलीग विष्णु सोम को, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं। उन्होंने बोला है कि All right, well, joining us now, भूमिका शांति प्रक्रिया के लिए, और शांति प्रक्रिया जो चल रही है पूरी, इसमें भारत का योगदान क्या रहेगा, उसमें पूरी तरीके से वो स्वागत करेंगे उसका। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि मार्को रूबियो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो मई में भारत आएंगे, और हो सकता है कि ट्रंप भी उसके बाद आए, लेकिन पहले मार्को रूबियो यहाँ पर आएंगे। और 40 मिनट की जो बातचीत हुई है ट्रंप और मोदी के दरमियान, उस पर डिटेल में बातचीत हुई है, और ये बातचीत जो है मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पे भी हुई है, और उसके साथ ही जो भारत और अमेरिका के बीच में संबंध है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ट्रेड डील कैसे की जाए और डिफेंस डील्स कैसे की जाए, इस पर लगभग 40 मिनट तक बातचीत की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं, उस पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक डिटेल्स दी कि पिछले 45 दिन में क्या हुआ, और आपको बता दूं कि ये दूसरी वार्ता है भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में। तो सर्जियो गौर का कहना यह है कि ट्रंप ने डिटेल में जो सिचुएशन है वो प्रधानमंत्री मोदी को समझाई, और अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि भारत के लोग अमेरिका को प्यार करते हैं, ट्रंप को प्यार करते हैं। तो बहुत ही मुझे लगता है कि अहम भूमिका अभी इस फोन कॉल की रहेगी, भारत और अमेरिका को साथ लाने की, और अगली जो प्रक्रिया ये रहेगी कि डिप्लोमेटिक तौर पर रिश्तों को कैसे और सुधारा जाए और ट्रेड डील को कैसे मजबूत किया जाए। क्या भारत का योगदान पीस प्रोसेस में रहेगा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अभी भी चर्चा जारी है, नेगोशिएशन जारी है, और तभी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को साथ लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ले जाना चाहते हैं शांति प्रक्रिया के लिए, और अमेरिका और भारत के जो दरमियान रिश्ते हैं उसको आगे कैसे लिया जाए।
बिल्कुल आदित्य, मैं जो बात हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। युद्ध के हालात को लेकर आपको हम अलग अलग जानकारियां समय समय पर देते हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि सर्जियो गोर ने कहा है कि शांति वार्ता में भारत की भूमिका हो सकती है। आपको ये बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 40 मिनट की बातचीत हुई है। 40 मिनट में एक अच्छा खासा खाका खींचा जा सकता है। किन किन मुद्दों पर बात हुई होगी, किन बिंदुओं पर बात हुई होगी, आप जानते हैं। युद्ध पर बात हुई होगी, भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बात हुई होगी। अशोक सजनार जी जुड़ गए हमारे साथ, फॉर्मर एम्बेसडर सजनार, बताइए जरा सा, आपको क्या लग रहा है एक ऐसे समय में अमेरिका अपने रिलायबल पार्टनर, भरोसेमंद अगर साझेदार को फोन मिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद में वार्ता फेल हुई है, इसके मायने क्या है? जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की और अब हम जानते हैं जो ट्रंप 1.0 में बहुत अच्छा दोनों के संबंध थे, बहुत अच्छी दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी। अब ये देख रहे हैं जो उनका दूसरा जो कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें थोड़ी ऊंचाई नीचाई आ गई है, क्योंकि जब ऑप सिंदूर हुआ उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना मैंने वो रुकवाया है वगैरह, उसकी वजह से थोड़ा सा दोनों देशों के बीच में भी संबंधों में कुछ खटाई आ गई है। परंतु अब मेरे विचार से हालात ऐसे हो गए हैं, पूरे विश्व के हालात ऐसे हो गए हैं जो भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। भारत की एक यहाँ पर सभी देशों के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है, इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध है, अमेरिका के साथ तो है ही, और खाड़ी देशों के साथ। तो जो भी इसमें जिसे कहा जाए मेन एक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, सभी के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। तो इसमें भारत एक अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि सभी को विश्व में चाहिए, भारत को चाहिए, अमेरिका को चाहिए, खाड़ी देशों को चाहिए जो जल्द से जल्द शांति स्थापित हो। और उसके लिए मेरे विचार से ये जो बातचीत हुई है दोनों नेताओं की बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जैसा कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे समय में भारतीय प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं जब वो रोज कोई ना कोई अल्टीमेटम जरूर दे रहे हैं ईरान को लेकर। अब जिस वक्त उन्होंने नाकेबंदी की है, हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, उस ब्लॉकेड को लेकर एक धमकी चीन से आ गई है और एक धमकी एक तरह से रूस से भी आई है, जब वो कह रहे हैं हमारा अपना करार है, आप कौन होते हैं हमें बीच में रोकने वाले इस रास्ते से हमारे शिप्स निकालने में। ऐसे में मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि कितना जरूरी भारत हो जाता है अमेरिका के लिए। देखिए, बहुत जरूरी है ये। देखिए, जो चीन का कहना जो हमारा करार है, परंतु देखिए कोई बायलैटरल एग्रीमेंट किसी इंटरनेशनल लॉ के ऊपर तो उसका दर्जा नहीं हो सकता ना। अब जो ईरान का है, ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून को परे रखकर वो अपनी वहां पर चला रहा है। देखिए, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इंटरनेशनल वाटर्स है, ग्लोबल कॉमन्स है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी में, उसके अंतर्गत उसका वहां पर आवागमन होता है, कश्तियों का, जहाजों का। परंतु ईरान कहता है जो मेरे खाली जहाज जाएंगे और जो जाएंगे उनसे मैं या तो कुछ को नहीं जाने दूंगा, जिनको मैं जाने दूंगा उनसे मैं मुआवजा वसूल करूंगा, उनसे मैं टैरिफ वसूल करूंगा। तो ये तो किसी उसमें नहीं लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय कानून में। तो अगर उसको पूरा करने के लिए मेरे विचार से अमेरिका जो कर रहा है वो भी ठीक नहीं कर रहा है। परंतु सबसे पहले इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसको रोकने की जो गलती। बिल्कुल एम्बेसडर, आप जो बात कह रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त वो जगह बनी हुई है जहां से एक और नया युद्ध शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 40 मिनट की बातचीत हुई है, और एक ऐसे समय पर जब अमेरिका नाकेबंदी कर रहा है। कहां की कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ट्रंप ने घेराबंदी कर दी, और ये घेराबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने फाइटर जेट्स भेज कर की है, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज कर की है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है।